Good afternoon, students. Good afternoon. कहाँ तक पढ़ चुके थे बेटा लास्ट क्लास में? फ्रिक्शन पढ़ा था. What is the definition of friction force? What is definition of friction force, beta? It is a force that opposes relative motion between two surfaces which are in contact. Very good. And what is the direction of force? Friction force. What is the direction of friction force? Opposite to direction of motion. Okay. If this object move in right side, if I apply force in right side, then this object move in right side, then direction of friction force will be in right side or left side? Left. And we have discussed about factor on which friction depends. Yes or no? We have discussed about friction depends. What is the first factor on which resistance depends? Friction force depends. What is the first factor on which friction force depends? Nature of contact surface. Very good. Nature of contact surface. What is the relation between friction and rough surface and smooth surface? The friction is less in smooth surface. Yes. And Friction is more in rough surface. rough surface. My question is, why is friction is more? Why is friction more for rough surface? Why is friction more for rough surface? Because there are many irregularities. Because rough surface has large number of irregularities, and when two surface has irregularities, then these irregularities interlock each other, and so there is a force work between two surface, and this force is known as friction force. Yes or no? Right? And second thing is mass, weight. Yes or no? Friction force depends on weight also. Like if large body has large friction force, if two body has same type of surface, right? Two body has same type of surface like wooden surface, and our floor have same type of surface, right? Our floor has same type of surface, and two bodies have same type of surface, means same type of material, then friction force depend on mass, depend on weight of the surface. Yes or no? We have discussed 2 points, right? Yes. Okay. Today we will discuss one more point, means 3 points, right? मीन्स पॉइंट नंबर बेटा 3. फोर्स कौन से पॉइंट पर डिपेंड करता है वो और देखते हैं, राइट? कौन से पॉइंट पर और डिपेंड करेगा? बस सरफेस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है बेटा? आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा. जो पढ़ाऊंगा बुक में नहीं मिलेगा, इतने अच्छे से नहीं मिलेगा, राइट? तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना. जहां समझ में नहीं आए पूछ लेना, राइट? फ्रिक्शन force depend on state of surface. ये क्या मीनिंग हुआ सर? स्टेट ऑफ सरफेस मीन्स सर नहीं समझ में आया. स्टेट ऑफ सरफेस
तो बेटा दो स्टेट हो सकती है सरफेस की, या तो वो रेस्ट पर हो सकता है या मोशन में हो सकता है। लाइक ये सरफेस, इस ऑब्जेक्ट की ये वाली सरफेस बेटा अभी किसमें, रेस्ट पर है, यस और नो? यस सर। और अगर यही इसी ऑब्जेक्ट को बेटा मूव करवा रहा हूं तो ये वाली सरफेस बेटा अब रेस्ट पर है या मोशन में है? मोशन। मोशन में है। तो इस बात पर भी डिपेंड करता है बेटा कि आपका ऑब्जेक्ट मीन्स आपका सरफेस रेस्ट पर है या मोशन में, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है फ्रिक्शन। तो आज उसी की हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तैयार हो बेटा सभी? राइट, चलो। तो उसके बेसिस पर हमने फ्रिक्शन को 3 टाइप में डिवाइड किया। किसके बेसिस पर? स्टेट ऑफ सरफेस के बेसिस पर। राइट, तो यहीं पर मैं लिखने जा रहा हूं बेटा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट। 3 कौन कौन से बेटा? फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा, स्टैटिक मीनिंग, स्टैटिक का मीनिंग बेटा क्या होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, दिस कंडीशन इज नोन एज स्टैटिक। स्टैटिक होता है बेटा रेस्ट। स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है? रेस्ट। समझ में आता है बेटा इतना? स्टैटिक मीन्स क्या होता है बेटा? रेस्ट। तो ये जो फोर्स लगेगा बेटा, फ्रिक्शन फोर्स, वो कब लगेगा? जब मेरा ऑब्जेक्ट कहां पर होगा बेटा? रेस्ट पर होगा। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा तब कौन सा फोर्स लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा लगेगा बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन। नाम से पता लग रहा ना, स्टैटिक मीनिंग क्या बेटा? रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा उस टाइम पर कौन सा फोर्स लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ये समझ में आता है बेटा? यस और नो? राइट, यस। पर अभी ये स्लाइड कर रहा है ना, अब ये स्लाइड कर रहा है कि नहीं बेटा? ये स्लाइड कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, मूव कर रहा ना, स्लाइड कर रहा है कि नहीं बेटा? स्लाइडिंग कर रहा है, उछल रहा है, यस और नो? तो इसका नाम हमने रखा सेकंड का स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और इसी को बोलते हैं काइनेटिक्स। काइनेटिक्स मीन्स जो मोशन में होता है। काइनेटिक्स का मीनिंग क्या बेटा? जब मोशन में होता है उसे बोलते हैं काइनेटिक, और जो रेस्ट पर होता है बेटा उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक। रेस्ट मीन्स स्टैटिक, मोशन मीन्स काइनेटिक। राइट। एक और होता है रोलिंग, ऐसा। अब समझो बेटा, ये था रेस्ट पर, ये बेटा मोशन। लेकिन एक और हो सकता है, देखो ये चौक क्या कर रही है बेटा? रोल कर रही है कि नहीं? ये चौक रोल कर रही है बेटा? चौक को देखो ध्यान से, क्या कर रहा है? रोल कर रहा है ना? तो इस टाइम पर जो फ्रिक्शन लगेगा उसका हमने क्या नाम रखा? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन। तो क्या पढ़ने वाले हैं सर हम बेटा 3 टाइप के फ्रिक्शन पढ़ने वाले हैं। टाइप ऑफ फ्रिक्शन 3 टाइप। सर कौन से? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा तब कितना फोर्स लगेगा, कितना फ्रिक्शन लगेगा, उसकी बात करेंगे सर। जब बेटा ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तब जो फोर्स लगेगा उसे हम बोलेंगे सर स्लाइडिंग। स्लाइड कर रहा है सर तो स्लाइडिंग। और सर जब मोशन में होता है उसे हम काइनेटिक भी बोलते हैं, तो काइनेटिक मोशन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन। और सर एक और होता है जब कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है उसे हम बोलते हैं बेटा रोलिंग फ्रिक्शन। तो समझ में आया बेटा कब कौन सा फ्रिक्शन बोलोगे? स्टैटिक मीन्स फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट और सरफेस एट रेस्ट। फ्रिक्शन when object in moving condition, right? And friction when object in rolling condition. Yes or no बेटा? इतना समझ में आता है कि नहीं? राइट, ये समझ में तो आ रहा है ना कि कभी तो बेटा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा तब का फ्रिक्शन क्या बोलोगे? स्टैटिक। ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा बेटा तब क्या बोलोगे? काइनेटिक या फिर स्लाइडिंग। और जब रोल करेगा बेटा तब क्या बोलोगे? रोलिंग फ्रिक्शन। एक बार नोट करो इसको, नोट करो फिर आगे पढ़ाता हूं बेटा।
इसको नोट करो जल्दी से। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट कर दो, यस और नो। यस। ओके ओके ओके। अब बहुत ही मजेदार चीज पढ़ने वाले हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। राइट, चलो बढ़ते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन। वन वन पढ़ेंगे ना, पहले स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर पढ़ेंगे बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन, फिर पढ़ेंगे बेटा रोलिंग फ्रिक्शन, फिर पढ़ेंगे इन तीनों में क्या रिलेशन होता है वो देखेंगे। सर कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा वो हम बात करेंगे, लेकिन पहले पता तो करें स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है, कब लगता है, कैसा लगता है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या नाम बेटा इसका, स्टैटिक। स्टैटिक का मीनिंग ही बेटा क्या होता है, रेस्ट। स्टैटिक का मीनिंग बेटा रेस्ट होता है। चाहे तो आप यहाँ पर लिख लो, एक कोष्टक में लिख लो बेटा स्टैटिक। स्टैटिक कब बोलते हैं, रेस्ट पर जब ऑब्जेक्ट होता है। राइट, चलो अब स्टैटिक फोर्स का डेफिनेशन लिखते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का हम क्या लिखने जा रहे हैं बेटा, डेफिनेशन। क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स। कब का फ्रिक्शन फोर्स बेटा, फ्रिक्शन फोर्स ऑन रेस्ट सरफेस, रेस्ट सरफेस known as static फ्रिक्शन। बेटा ये बात क्लियर हुई कि नहीं, जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा उस टाइम का जो फ्रिक्शन होगा उसे आप क्या बोलोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये बात क्लियर हुई, यस और बेटा। यस सर। अब यहाँ पर मैं बहुत ही मजेदार बात करने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना, ठीक है। पहले इसको नोट करो फिर साथ में पढ़ेंगे ना, एक बार इसको नोट करो। नोट करो जल्दी से। चलो नोट हो गया होगा ना। कर दो बेटा रफ, ओके नोटेड, यस और नो। यस सर। और बेटा राइट। अब सुनो ध्यान से, स्टैटिक फ्रिक्शन की मजेदार कहानी। बहुत ही मजेदार होता है बेटा, इंटरेस्टिंग होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रिक्शन है। अब कैसे है वो समझेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे। राइट, अब देखो बेटा, ये आपके पास बेटा सरफेस है। राइट, यहां पर रखा हमने एक बॉक्स, क्या रखा बेटा, बॉक्स, एक बॉक्स रखा हुआ है, यहां पर एक बॉक्स रखा हुआ है। अभी आप उस पर फोर्स नहीं लगा रहे हो, तो क्या उसको फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है क्या? जब फोर्स नहीं लगा रहे हो तो फ्रिक्शन कब लगेगा? जब अपोज करता है मोशन को। जब आपने फोर्स नहीं लगाया, वो रेस्ट पर रखा हुआ है, तो बेटा यहां फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा? सोचो, नहीं लगेगा। राइट, मीन्स बेटा ध्यान रखो स्टैटिक फोर्स के बारे में, जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना ही लगेगा और अपनी लिमिट से ज्यादा नहीं लगेगा। एक लाइन है बहुत अच्छी, जितना रिक्वायरमेंट है उतना लगेगा। गहन में कर लो, अपने अंदर डाल लो लाइन बेटा, जितना रिक्वायरमेंट है उतना लगेगा और अपनी लिमिट से ज्यादा नहीं लगेगा। उसकी लिमिट ही नहीं होगी तो उससे ज्यादा कहां से लगेगा? जितना रिक्वायरमेंट है उतना लगेगा, जितना रिक्वायरमेंट है बेटा उतना लगेगा और अपने लिमिट से ज्यादा नहीं लगेगा। ओके, अब सर इसको एक्सप्लेन भी कर दो, एक बार बोलो बेटा सभी साथ साथ में, जितना रिक्वायरमेंट है उतना लगेगा, बोलो सभी, जितना रिक्वायरमेंट है उतना लगेगा और लिमिट से ज्यादा नहीं लगेगा। ओके, जितनी रिक्वायरमेंट है बेटा उतना लगेगा,
और लिमिट से ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लगेगा। सर क्या मीनिंग हुआ? अब समझो बेटा इसको, इस लाइन को ध्यान रखना, जितना रिक्वायरमेंट है बेटा उतना लगेगा और लिमिट से ज्यादा नहीं लगेगा। अब समझो, मुझे बताओ, यहां पर बेटा एक बॉक्स रखा हुआ है, मैंने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया, ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, और मुझे क्या पता है बेटा कि इन दोनों की जो सरफेस है, बॉक्स की सरफेस और फ्लोर वाली सरफेस, वो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम मान लो, यहां पर लिखा बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसका डेफिनेशन भी लिखना दूंगा बेटा अभी। लिमिटिंग फ्रिक्शन मीन्स मैक्सिमम कितना लग सकता है। मान लेते बेटा ये ऐसी सरफेस है जो मैक्सिमम लगा सकती है बेटा 25 मीटर। कितना लगा कितना सकती है बेटा सरफेस? सरफेस कितना फोर्स लगा सकती है बेटा? बोलो कितना लगा सकती है? 25 न्यूटन। लिमिटिंग मीन्स इतना लगा सकती है, इससे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो नहीं लगाएगी, लेकिन जितना जरूरत है उतना ही लगाएगी। लेकिन अगर इससे ज्यादा हुई तो इसका खेला खत्म, अब इसके पास कुछ नहीं है, ये ऊपर हाथ कर देगी कि भैया मेरे पास कुछ नहीं है, जितना था उतना दे दिया। तो इसके पास था कितना? 25 ये लगा सकती है। तो पहला क्वेश्चन बेटा, अगर मैंने यहां पर बेटा कोई फोर्स नहीं लगाया, फर्स्ट जब एफ नेट 0 है, जब आपने बेटा कोई फोर्स लगाया नहीं, ये रेस्ट पर है, तो क्या इसको अपोज करने की जरूरत है या पहले से रेस्ट पर रखा हुआ है? क्या यहां पर फ्रिक्शन फोर्स होगा या नहीं होगा? रिक्वायरमेंट है क्या इसको? नहीं है ना। जब तक ये रेस्ट पर है कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कौन इसको अपोज, किसको अपोज करेगा? जब कोई इसको चलाने के लिए नहीं आ रहा है, जब बेटा मोशन ही नहीं हो, तो क्या ये अपोज करना चाहेगा? नो सर, फोर्स ही नहीं लगाएंगे बेटा। तो मुझे बता सकते हो क्या बेटा इसका फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन इस केस के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है बेटा? बोलो हेलो बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा? 0, राइट। तो यहां पर मुझे क्या पता लगा? स्टैटिक फ्रिक्शन सर स्टैटिक फ्रिक्शन आपका है सर 0 न्यूटन, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है, नहीं लगा भैया। बोला तो है रिक्वायरमेंट होगा उतना लगेगा, लेकिन आपने बोला मुझे तो इतना रिक्वायरमेंट है, उसके पास इतना सा है, तो कितना लगाएगा? इतना ही लगाएगा। आपकी रिक्वायरमेंट इतनी है तो रिक्वायरमेंट के इक्वल लगेगा, लेकिन जब आपकी रिक्वायरमेंट उसकी लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएगी तो वह हाथ खड़े कर देगा कि भैया इससे ज्यादा हम नहीं लगा सकते। तो समझना है बेटा, इसका मान लो लिमिटिंग कितना है? 25। तो अभी इसका रिक्वायरमेंट कितना है? 0, तो फोर्स लगा 0। अब मुझे कौन बताएगा यहां पर? अभी बेटा ये रेस्ट पर है ना, ये रेस्ट पर है, ये अभी रेस्ट पर है। मैंने यहां बेटा फोर्स लगाया 10 न्यूटन। तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? कौन बताएगा? फ्रिक्शन फोर्स सोचो, जबकि इसका लिमिटिंग वही है बेटा। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? लिमिटिंग फ्रिक्शन इसका भी कितना बेटा? 25 के लिए। सोचो तो सही है एक बार, मैक्सिमम कितना लगा सकता है बेटा? 25। सोचो इसको, फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए सर? बोलो बेटा, आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो रिक्वायरमेंट कितनी है रोकने के लिए? फोर्स क्या चाहता है? रुक जाए भैया, चल नहीं ना दो तुझे, स्लाइडिंग नहीं होने देगा बेटा। तो कितना लगना चाहिए बेटा? कितना फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तब जाके ये नहीं चलेगा बेटा। रिक्वायरमेंट कितने की बेटा? देखो इसमें, सोचो एक बार बेटा, खुद से सोचो। 10 न्यूटन फोर्स इस साइड लगा रहे हो तो ये ना चले, उसके लिए अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए बेटा? रिक्वायरमेंट कितने की है बेटा? कितने की रिक्वायरमेंट है? बोलो। 10 की है ना? यस सुनो बेटा, रिक्वायरमेंट कितने की है? 10 न्यूटन की। अगर बेटा 10 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लग जाए तो ऑब्जेक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा बेटा? नहीं चलेगा। यस सुनो, 10 आपने इधर लगाया, 10 फ्रिक्शन ने इधर लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन में, तो अभी भी वो रेस्ट पर है। यस और नो? ये समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? यस समझ में आता है कि नहीं?
ऐसे समझो, आपने देखा हो बेटा तो क्या होता है, अब फील करना, एक बड़ा सारा बॉक्स, एक बड़ा सा बॉक्स, अब मुझे उस पर फोर्स लगाना है, मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूं, क्या मेरे फोर्स लगाने से चल जाएगा क्या? बहुत बड़ा बॉक्स है, नहीं ना। कौन रोक रहा है उसको बेटा? कौन रोक के रखा हुआ है? फ्रिक्शन फोर्स, यस और नो? फ्रिक्शन फोर्स रख रहा है, यस। लेकिन मैं आप सभी को बोलूं, आ जाओ बच्चों, सभी धकेलते हैं इसको, सब फोर्स लगाते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स की लिमिट कहीं न कहीं तो ब्रेक हो जाएगी, वो रोकेगा, एक के वाला, दो और आगे अभी भी रोका हुआ है, 5 आगे, अब वो उसका लिमिट खत्म हो जाएगा बेटा, अब वो बॉक्स मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, यस और नो? कहानी समझ में आ रही है? बड़ा सारा बॉक्स, उसकी कुछ लिमिट होगी, मैंने फोर्स लगाया, नहीं हिला, क्यों? उसकी बहुत ज्यादा लिमिट है, मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, लेकिन वो कितना लगा सकता है? वो लगा कितना सकता है? सपोज करो लगा सकता है बेटा 25, मैं तो कितना लगा सकता हूं उसके ऊपर? 10 न्यूटन, मैक्सिमम 10 न्यूटन। तो वो क्या बोलेगा, मेरे पास 25 है, तेरे ऊपर मैं वापस 10 लगा देता हूं, वापस ने मेरे ऊपर 10 लगा दिया, रेस्ट पर है, मेरे जैसा एक और आया, हम दोनों ने मिलकर बेटा कितना लगाया? 20 न्यूटन। तो अब वो कितना लगाएगा हमारे ऊपर? उसके पास 25 रखा हुआ बेटा, वो कितना लगा देगा हमारे ऊपर? हम दो फ्रेंड है, एक 10 लगा रहा है, एक और 10, तो हम दोनों ने मिलकर बेटा 20 लगाया, तो वो बॉक्स अब चल पाएगा या नहीं? वो 25 लगा सकता है, सोचो वो चलेगा या नहीं चलेगा बेटा? अगर हम दो फ्रेंड टोटल 20 न्यूटन फोर्स उस बॉक्स पे लगा रहे हैं, लेकिन वो कितना लगा सकता है? 25, तो बॉक्स रेस्ट पर रहेगा या चल जाएगा, मूव करेगा? रेस्ट पे। रेस्ट पे रहेगा ना। अभी तो उसके पास कितना रखा बेटा? 25, हम दो ने मिलकर कितना लगाया? 20, लेकिन वो क्या बोलेगा, मेरे पास तो 25 है, मैं तुम्हारे ऊपर 20 लगा दूंगा। तो उसने लगाया कितना बेटा? रखा कितना था? 25, लेकिन जरूरत कितनी है उसकी, रिक्वायरमेंट कितनी है बेटा? 20, तो फोर्स कितना लगाएगा? 20 न्यूटन, राइट। लेकिन अब सोचो, ऐसे हम 3 फ्रेंड आ जाएं, एक ने लगाया 10, दूसरे ने लगाया 10, किसने लगाया 10, अब हमने लगाया 30, अब वो कितना लगा सकता है बेटा? बॉक्स कितना लगा पाएगा? बॉक्स की मैक्सिमम 25 अब हमने लगाया 30, उसने लगा सकता है बेटा कितना? सिर्फ 25। अब बॉक्स चलेगा या रुकेगा बेटा? अब बॉक्स क्या होगा? चलेगा, मूव करेगा, मूव कर जाएगा। तो अब मुझे रिप्लाई कर देना। पहले बेटा ये बनाओ, ठीक, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है बेटा? 0। यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है बेटा? 10, क्योंकि रिक्वायरमेंट से ज्यादा नहीं लगेगा, रिक्वायरमेंट है उतना ही लगेगा, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट उससे ज्यादा हो गई तो मैक्सिमम लग जाएगा जितना उसके पास है। ऐसा समझो, उसके बैग में कितना है? 25, उसके बैग में रखा है 25, जितना जरूरत होगा उतना ही देगा ना। उसके बैंक में कितने रुपए रखे बेटा? 25, उसके जेब में कितने रुपए रखे हुए? 25। अगर वो 10 रुपीज का कुछ परचेज कर रहा है तो कितने रुपए देगा? पूरे 25 देगा या फिर 10 से काम चल जाएगा? 10 से काम चल जाएगा ना, रिक्वायरमेंट 10 की है, 10 दी है, लेकिन सोचो उसको जरूरत पड़ी बेटा 30 रुपए की, तो बोलेगा मेरे पास 25 रुपीज है, मैं 20 सकता हूं, 25, लेकिन उसको देना कितना है? 10 न्यूटन। जल्दी कहें, ये लिखो और मैं 2-3 क्वेश्चन और करवाता हूं, उसके जल्दी से रिप्लाई दे देना तो मैं समझ जाऊंगा आपको समझ में आने लगा है। चलो, बॉक्स बनाया बेटा, यस और नो? स्टैटिक फ्रिक्शन यहां पर लगा 10। अब मुझे बताओ, थर्ड केस है ना, 1 केस, ये बेटा 2 केस, और ये हमारा केस नंबर 3 यहां पर लगाना बेटा, ये केस नंबर 3। मैंने लगाया बेटा 20 न्यूटन फोर्स, तो मुझे कौन बताएगा बेटा फ्रिक्शन कितना लगेगा? बोलो बेटा, फ्रिक्शन कितना लगेगा? अगर आपने 20 न्यूटन लगाया है तो बताओ बेटा फ्रिक्शन
20 न्यूटन। 20 न्यूटन। ठीक है, आप तो एक बार में ना स्टैटिक फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट कितनी है सर? 20 की है। हमारे पास चेक कर ले पहले, है कि नहीं 20? सर 25 रखा हुआ है, लगा दो सर 20 न्यूटन। तो फ्रिक्शन बेटा कितना है? 20। इधर भी 20, इधर भी फोर्स लगा 20, तो ये ऑब्जेक्ट अभी भी बेटा किस पे रहेगा? रेस्ट पर, अभी भी नहीं हिलेगा। ठीक है, अब मुझे बताओगे आप नेक्स्ट 4 कंडीशन बेटा। 4 कंडीशन। कंडीशन नंबर 4, अगर आपने लगाया बेटा 30 न्यूटन फोर्स, आपने लगाया बेटा 30 न्यूटन फोर्स, तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा बेटा? अब बताओ बेटा, रिक्वायरमेंट 30 की है, लेकिन लगेगा कितना बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन? बोलो। 30 लगा रहा हूं, लेकिन उसके पास कितना है बेटा? उसके पास तो सिर्फ कितना है? 25 न्यूटन। नहीं, 25 न्यूटन। कितना लगा? तो कितना लगेगा बेटा? 25 न्यूटन। कितना लगा? 25 न्यूटन। अब ये रेस्ट पर रहेगा, चल जाएगा? अब ये मूव करेगा, मूव करेगा। तो ये मूव करेगा, राइट बेटा? तो अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लग रहा ना यहाँ पर। अब कौन सा नाम पड़ जाएगा बेटा इस फ्रिक्शन का? इस फ्रिक्शन का क्या नाम रखेंगे हम? किनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फीलिंग आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं हम? अगर फील आ गया तो मैं कुछ एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, पहले नोट करो। बेटा एक बार बता दो, समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को? समझ में आ रहा है? तभी मैं फिर एग्जाम्पल दूंगा आपको। अब मैं 4 एग्जाम्पल यहाँ पर बनवा रहा हूँ, ठीक है? साथ साथ में बनाना और मुझे उसका रिप्लाई करना, राइट? रख कर दो बेटा, यस और नो? यस। ओके। One, 2, 3 और 4, राइट? यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ था, रेस्ट पर है, आपने लगाया इसके ऊपर 5 न्यूटन, लेकिन यहाँ पर गिवन है लिमिटिंग फ्रिक्शन 20 न्यूटन। फिर यहाँ पर एक बॉक्स और गिवन है, वही सेम बॉक्स बेटा, सेम लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन 20 न्यूटन, लेकिन आप इस बार लगा रहे हो बेटा S इक्वल टू 50 न्यूटन। F इक्वल टू, ये भी रेस्ट पर है बेटा, ये भी रेस्ट पर है, राइट? S इक्वल टू 20 न्यूटन। यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा इसके ऊपर, इसमें बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन वही है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको दे रखा बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना दे रखा है? 20 न्यूटन। वही बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन 20 न्यूटन,
लिमिटिंग फ्रिक्शन 20 न्यूटन है बेटा, ओके। और यहाँ पर आपने लगाया एक फोर्स हमारे पास में 21 न्यूटन। फोर केस है, सभी में बेटा एक आपको क्या रखना है, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू फाइंड करना बेटा, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा वो बताना है, और ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा या मोशन में रहेगा बेटा वो बताना है, ठीक है। फोर केस करो, टाइम आपके पास 2 मिनट 3 मिनट, करो बेटा आराम से, एक एक केस को समझो, करो। 4 मिनट दे रहा हूँ, टोटल 4 मिनट, लेकिन बेटा सभी को समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नहीं समझ में आता फिर पूछ लेना। फर्स्ट में 4 से 5 न्यूटन लग रहा है, दूसरे में हमने 15 न्यूटन लगाया उसी बॉक्स पर, फिर उसी बॉक्स पर 20 लगा दिया, फिर 21 लगा दिया। चलो कौन बताएगा बेटा, फर्स्ट में आंसर क्या आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा बेटा, फर्स्ट में स्टैटिक, यस यस यस, एनीवन? Yes, sir. First में static friction आएगा 5 न्यूटन and it will be in rest. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, बिकॉज रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन इज 5 न्यूटन, सो फ्रिक्शन फोर्स विल बी 5 न्यूटन। इन सेकेंड केस, what is the friction in second case? Hello? So can I? Yes, 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 yes. 15 Newton and the box will be at rest. Box will be at rest. And in third case? अमरेंदु सर, इंग्लिश पढ़ाते हो, नीचे बैठे थे ना उस टाइम पे, मैं बैठा था मेरे सामने, थोड़ा सा ऐसा, जो नए सर है ना, अभी नए आए, 2-3 दिन से नए आए, 2-3 दिन से नए आए हैं ना, वो है। नहीं, पहले पुराने थे लेकिन अभी आना स्टार्ट हुए हो। तो शायद पता नहीं क्लास तो कहाँ ले रहे हो, नीचे ले रहे होंगे शायद। नहीं 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 नहीं, वो तो दूसरे हैं। अमरेंदु सर चेक्स वाली शर्ट पहने हुए हैं, इसी कलर की शायद, थोड़ा सा रेड कलर की, थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, चलो बेटा सेकंड में कौन सा आएगा, 50 न्यूटन, ओके बेटा। थर्ड बताओ, थर्ड। So in third case static force will be 0 Newton. नो 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 नो, फ्रिक्शन फोर्स बताओ बेटा, फ्रिक्शन कितना रिक्वायरमेंट है, 20 की रिक्वायरमेंट है ना, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा बेटा, पहले तो जितना रिक्वायरमेंट है। Yes sir, 20 कितना आएगा बेटा, so object at rest। 4 बताओ बेटा, 4 बताओ, 4 में कितना लगेगा, 20 Newton and object will move. अगर ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया तो अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, Kinetic friction. काइनेटिक फ्रिक्शन। वेरी गुड, सभी ने अच्छे रिप्लाई दिए बेटा, बहुत ही अच्छा। आप जानते हो आपने बहुत ही बड़ी चीज पढ़ी हमने आज, और आपने बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया बेटा, वेरी गुड। मीन्स आपने 10 लेवल से भी ऊपर का पढ़ लिया, ठीक है। आप 11 लेवल तक पढ़ चुके हो, कहाँ तक पढ़ चुके हो, 11 क्लास तक। क्लास में हो, 8 में क्या पढ़ दिया आपने, 11 क्लास का, समझ में आ रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन आपको 11 में फिर से मिलेगा, और वहां पर आप रिप्लाई करोगे धमाधम। बस एक लाइन याद रखनी है, रिक्वायरमेंट के बराबर लगेगा और अपने लिमिट से ज्यादा नहीं लगेगा। इसमें बेटा आंसर क्या आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन बताओ बेटा जल्दी से। स्टैटिक फ्रिक्शन सर लगेगा 5 की जरूरत है, 20 रखा हुआ है, रिक्वायरमेंट सर 5 की है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा सर। इसमें बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन बताओ मुझे बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा,
रिक्वायरमेंट सर 15 की है, लेकिन हमारे पास तो 20 रखा हुआ है, लगा दो सर 15, अभी भी सर रेस्ट पर रहेगा, नेट फोर्स 0। यहाँ पर बताओ बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन, बोलो बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन बताओ ना। 20 न्यूटन। रिक्वायरमेंट 20 की है, लेकिन 20 रखा हुआ है, लगा दो पूरा का पूरा रेस्ट पर। लेकिन यहाँ पर बताओ बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे आप निकालने जाओगे आपको क्या पता लगेगा कि बॉक्स मूव कर गया, बॉक्स मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, तो अब ये स्टैटिक नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा बेटा, इसका नाम बदल के क्या लिखना पड़ेगा, काइनेटिक। काइनेटिक। 1 मिनट इसका नाम बदलकर हम क्या कर देंगे, काइनेटिक रोबोट। यस और नो, समझ में आता है सभी को? यस और नो? यस नोट क्या बनाने, नोट क्या, Sir, your voice is cutting. Sir, your voice is cutting. Sir, your voice is cutting. आप क्लास के बैठे हो ना, क्लास में बैठे हो, ठीक है, 5 न्यूटन लगा सकते हो। आप कितना फोर्स लगा सकते हो बेटा, 5 न्यूटन लगा सकते हो। कितना लगा सकते हो बेटा, एवरी स्टूडेंट अप्लाइड 5 न्यूटन मस्कुलर फोर्स। ओके, योर कैपेसिटी इज 5 न्यूटन, डन। अब 20 स्टूडेंट क्या बैठे हुए थे और मेरे यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ पर बेटा एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, और उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन है बेटा 55। कितना है, 55। ध्यान से सुनना बेटा, एक बॉक्स है जिसका लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा कितना है, 55 न्यूटन। एक बड़ा सा बॉक्स यहाँ रखा हुआ है क्लास के अंदर, और मुझे क्लास करने में प्रॉब्लम आ रही है, मैं चाहता हूं कि इसको बेटा साइड में कर दो। यहाँ एक बड़ा सा बॉक्स रखा था बीच बीच, राइट, जैसे हम नेक्स्ट दिन क्लास में आए, आप 20 स्टूडेंट बैठे हुए हो, मैंने कहा बेटा इसको साइड में कर दो, लेकिन मैंने आपको बताया बेटा इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना है बेटा, मैक्सिमम 55 न्यूटन लगा सकता है। और आपको पता है कि हम सब 5 न्यूटन लगा सकते हैं, तो आप में से टोटल कितने स्टूडेंट आओगे उठ करके ताकि वो बॉक्स साइड में चला जाए? एक स्टूडेंट साइड लगा सकता है, तो आप में से टोटल कितने स्टूडेंट को आना चाहिए कि वो बॉक्स साइड में चला जाए? क्वेश्चन ये है, समझ में आया? एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है, मैं चाहता हूं बेटा आप उसे साइड में किसका दो, लेकिन उसका जो फ्रिक्शन फोर्स है लिमिटिंग, वो कितना लगा सकता है, 55 न्यूटन। लेकिन एक स्टूडेंट 5 न्यूटन फोर्स लगा सकता है, एक स्टूडेंट 5 लगा सकता है, तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आने चाहिए जो सब मिलकर के फोर्स लगाएं तो बॉक्स साइड में चला जाएगा? 11, 12, 11. थोड़ा सा और ज्यादा Sir, 12. Sir, 12. तो समझ में आया? जब घर के बॉक्स को खिसकाते हो ना, वो कैसे खिसकाते हैं? हम एक नहीं खिसका सकते, क्यों? क्योंकि उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा है, फिर पापा भी आ जाते साथ में, खिसक जाता है। क्यों? उसके लिमिटिंग से ज्यादा लगा दिया। तो समझ में आया क्या मजेदार कहानी होती है फ्रिक्शन में? समझ में आ रहा है बेटा? फील हो रहा है कि नहीं? 12 स्टूडेंट चाहिए, 12 स्टूडेंट हमें चाहिए। 11 तक तो आपने बराबर, वो भी बराबर, कोई नहीं, कोई जीतना है, कोई हार भी नहीं रहा, बराबर। लेकिन अगर छोटा सा बच्चा भी आ गया ना, जिसने बस अंगुली लगा दी उसके ऊपर, ऐसे फिंगर लगा दी, तब भी खिसक जाएगा। 11 आप में से आ गए और एक छोटा सा स्मॉल चाइल्ड आ गया, उसने बस एक फिंगर लगा दिया ऐसा, तब भी वो बेटा मूव कर जाएगा। लेकिन मैंने पूछा था आप में से कितने आने चाहिए, तो 12। अंडरस्टूड? यस और नो? फ्रिक्शन फोर्स समझ में आया? Yes. चलो, तो जो लिमिटिंग है वो तो आपको समझ में आ गया, लेकिन एक इसका लिमिटिंग का बेटा डेफिनेशन भी नोट कर लेते हैं।
लिमिटिंग का डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। और बहुत ही अच्छा लगा बेटा, आप सभी ने इसका रिप्लाई अच्छे से किया, आपने आज बहुत ही अच्छे से रिप्लाई किया बेटा। तो याद रखना बेटा, जब तक अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा, रेस्ट पर ऑब्जेक्ट है तो उसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है फ्रिक्शन की। अगर फोर्स नहीं लगाते हो तो रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो जीरो फोर्स लगता है उसके ऊपर फ्रिक्शन। ठीक है, अब यहां पर एक लिमिटिंग का डेफिनेशन लिख देते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन किसे बोलेंगे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन is known as limiting friction. राइट? तो बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो सकता है? या तो लिमिटिंग से कम होगा, जब रिक्वायरमेंट बेटा कम होगी तो लिमिटिंग से कम होगा, या मैक्सिमम किसके बराबर हो सकता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन के। यही तो सीखा हमने आज की क्लास में कि सर जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, हमने क्या सीखा बेटा कि स्टैटिक फ्रिक्शन सर, स्टैटिक फ्रिक्शन या तो सर लेस देन होगा, किससे? लिमिटिंग से। लिमिटिंग से बेटा कैसा होगा? लेस देन होगा, नहीं होगा? जब रिक्वायरमेंट कम है तो कम लगेगा, या फिर सर मैक्सिमम क्या हो सकता है इसके? इक्वल हो सकता है। तो ये रिलेशन का ध्यान रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। ये बात बेटा यहां तक सभी को समझ में आई? यस और नो? स्टैटिक फ्रिक्शन क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? यस सर। यस सर। राइट, वेरी गुड वेरी गुड। स्टैटिक फ्रिक्शन सभी का क्लियर है अच्छे से। अब हम आगे बढ़ेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर, लेकिन हम पहले देख लेते टाइम है क्या? टाइम ज्यादा नहीं है, चलो थोड़ा सा फिर भी बात कर लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा खत्म हो चुका है, अब हम बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन की। एक और पॉइंट लिख लो यहां पर, है ना? वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड ऑन, वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन। कितनी रिक्वायरमेंट उस पर डिपेंड करता है बेटा, राइट? तो वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की कितनी रिक्वायरमेंट है बेटा, उस पर डिपेंड करता है। रिक्वायरमेंट कम है तो कम लगेगा। चलो ये समझ में आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट पढ़ेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। कल पढ़ाऊंगा बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन, आज हेडिंग डाल लो काइनेटिक फ्रिक्शन और थोड़ा सी बात कर लेते हैं, राइट? हेडिंग डालो काइनेटिक फ्रिक्शन और उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे आप। काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में आज थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो पहले हेडिंग डालो काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक का दूसरा नाम क्या बेटा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आपकी बुक में तो नाम दे रखा बेटा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। पता लग गया ना बेटा नाम से ही, कब है? जब ऑब्जेक्ट मोशन करने लग जाता है, उस टाइम पर फ्रिक्शन होता है, वो काइनेटिक होता है। अब मुझे एक बात रिप्लाई करना, सोच करके रिप्लाई करना, फील करना पड़ेगा तभी आंसर सही दे पाओगे। एक बड़ा सा बॉक्स यहां रखा हुआ है, राइट? रेडियो बेटा सभी इसको नोट कर लिया बेटा सभी ने? एक बार नोट कर लो। यस सर। राइट।
एक बड़ा सा बॉक्स फिल करना साथ साथ में, राइट। एक बड़ा सा बॉक्स यहाँ रखा हुआ था, हम सब मिलकर के पुश कर रहे हैं, लगाया पुश सभी ने, जोर लगा के हाइयो लगा रहे हम सब फोर्स, ओके। अब मुझे बताओ, तो चलने से जस्ट ना, मूव करने से जस्ट पहले आप फोर्स लगा रहे हैं, आपको फील भी हो रहा है, लेकिन जब मूव करना स्टार्ट होता है तब आपको क्या फील होता है कि अब आप कम फोर्स लगा रहे हो या ज्यादा लगा रहे हो? आपकी फीलिंग पूछ रहा हूं, ध्यान से फील करके बताना। हम सब पहले बेटा बॉक्स यहां रखा हुआ था, अब ये रेस्ट पर है, तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक सर। हम सब पुश कर रहे हैं और जो चलने लगा तब आपको क्या फील होता है? अब आप उस चलने पर, मोशन के टाइम उस पर ज्यादा फोर्स लगा रहे हो या कम लगा रहे हो? क्या फील होता है बेटा? सोच करके रिप्लाई करना। नहीं समझ में आया क्वेश्चन? बॉक्स रखा हुआ है, रेस्ट पर है, पहले बेटा फोर्स लगा के सब मिलकर हम फोर्स लगा रहे हैं, और जैसे स्टार्ट हो गया बेटा मूव करना, उस टाइम पर आपको क्या फील होगा कि जब रुका हुआ था तब आप ज्यादा फोर्स लगा Sir, your voice is not coming properly. अभी आ रही बेटा वॉइस? No, sir, your voice is not coming. Your voice is not coming, sir. नेटवर्क से बेटा बहुत आ रहा है सर, बारिश जैसा भी हो गया है। The video is paused. बेटा प्रॉब्लम आती है, Sir, again your voice is not coming. So your voice is not coming. ओके बेटा, बाय एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते, ओके? पढ़ के आना जितना हमने पढ़ा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, बाय। Bye. स्टैटिक Bye. फ्रिक्शन। Bye. Yes, sir.